میر رضا کو گولی پیچھے سے لگی، جسم پر تشدد کے نشان پائے گئے۔ دوسرے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ سامنے آ گئی۔ میر رضا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ پولیس سرجن کے 14 سوالوں کے جواب بھی مل گئے۔ نوجوان تاجر میر رضا کی قبر کشائی اہل خانہ کی موجودگی میں کی گئی۔ میڈیکل بورڈ نے پوسٹ مارٹم مکمل کیا۔ مجسٹریٹ کی نگرانی میں نمونے حاصل کیے۔ میر رضا کے والد کا بھی ڈی این اے سیمپل لیا گیا۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے قبر کشائی کے دوران حاصل تمام نمونوں کو محفوظ کر لیا گیا۔ جامعہ کراچی کی فورنسک لیب نے تمام سیمپلز پیر کو جمع کرائے جائیں گے۔ پوسٹ مارٹم سے ثابت ہو گیا میر رضا کو قتل کیا گیا۔ والدین کی میڈیکل رپورٹ کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا خودکشی پر زور دیا جاتا رہا، 10 دن سے کہہ رہے تھے تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ ذمہ دار ہوتے ہوئے آئی جی نے کیوں غلط بات کی؟ وکیل جبران ناصر نے تفتیشی ٹیم تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا، کہا پولیس تفتیش کرنے کے بجائے اہل خانہ کو ہراساں کر رہی ہے، انہیں ڈر ہے کہیں قاتل تک نہ پہنچ جائیں۔ میڈیکل رپورٹ میں میر رضا پر تشدد ثابت ہو گیا، لگتا ہے اسے قتل کرنے سے پہلے مکے مارے گئے۔ میر رضا کی تھوڑی پر زخم اور ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا، اس کی کمر پر گولی لگی، 5ویں پسلی پر اثر ہوا۔ کراچی پولیس چیف نے کہا خاندان مان لے کہ میر رضا نے خودکشی کی ہے۔ میر رضا کیس کی تحقیقاتی کمیٹی تحلیل، 5 رکنی نئی تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ تحقیقاتی کمیٹی ڈی آئی جی کرائم اینڈ انویسٹیگیشن عامر فاروقی کی سربراہی میں بنائی جا رہی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق تحقیقاتی کمیٹی میں ایس ایس پی سی ٹی ڈی عرفان بہادر بھی شامل ہوں گے، ایس پی کورنگی اور ایس پی سینٹرل انویسٹیگیشنز بھی شامل ہوں گے۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے سینئر افسر غضنفر بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ کچھ دیر میں تحقیقاتی کمیٹی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ میر رضا علی کی پراسرار موت سے کیا کوئی مالی لین دین کا مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے؟ کئی سوالات اٹھ گئے۔ خود میر رضا اور والد کی آڈیو کئی سوال اٹھا رہی ہے۔ والد نے نور نامی شخص کو مخاطب کر کے رقم کے بندوبست کا بھی ذکر کیا ہے۔ میر رضا کی سامنے آنے والی آڈیو میں کسی بھاری رقم کا تذکرہ ہے۔ کیا میر رضا اور متعلقہ افراد کے درمیان کوئی مالی لین دین تھا؟ یہ رقم کس مقصد کے لیے لی گئی تھی؟ کیا لین دین ایشو پر فریقین میں کوئی اختلاف ہوا تھا؟ کیا میر رضا نے کسی شخص سے اپنی رقم واپس مانگی تھی؟ واقعے سے پہلے کیا لین دین پر کوئی جھگڑا یا تلخی ہوئی تھی؟ کیا پولیس کو اس مالی تنازع سے متعلق کوئی دستاویزی یا ڈیجیٹل ثبوت ملا ہے؟ کیا میر رضا کے موبائل یا دیگر ریکارڈ سے کسی مالی تنازع کی نشاندہی ہوئی ہے؟ الٹی گنتی والے خود بھی سیدھے ہوں گے، ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ 2 روز بعد باغ سے مزید شیر کامیاب ہو کر اسمبلی پہنچیں گے۔ مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا باغ آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب، کہا ایکشن کمیٹی والے 99% لوگ محب وطن ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ 1% لوگ کشمیر کے عوام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا محض الزامات سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، پیپلز پارٹی کو عوامی فیصلے کا جائزہ لینا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کسی کا حق نہیں چھینتی، اپنے حق پر بھی ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گی۔ الٹی گنتی پیپلز پارٹی نے شروع نہیں کی، اس کا آغاز حکومت کے اندر سے ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری کہتے ہیں وزیر اعظم کی مشاورت کے بغیر وزیر داخلہ اور وزیر دفاع نے نئے صوبوں سے متعلق بیان دیا۔ نئے صوبوں پر کام آئین میں درج طریقہ کار کے مطابق ہو تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت کے مشترکہ دوستوں کے ذریعے پیپلز پارٹی سے رابطے، ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے پیپلز پارٹی کو تعلقات کی نئی شروعات کے پیغامات بھیجے، ورکنگ ریلیشن بحالی کی خواہش ظاہر کی۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے حکومت سے تعلقات کی فوری بحالی سے معذرت کر لی۔ بلاول بھٹو حقیقی اپوزیشن لیڈر بن کر بانی پی ٹی آئی کی جگہ لینا چاہتے ہیں۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا 10 اگست کے بعد نون لیگ اور پی پی خوش گپیاں کرتے نظر آئے تو ساتھ کھو دیں گے۔ محسن نقوی کہتے ہیں سسٹم ناکام ہو چکا اور حکومت بھی مدت پوری کرے گی، یہ تو عوام سے ظلم ہے۔ محمد زبیر نے کہا میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ نئے صوبوں پر بحث ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے، یہ بالکل طے ہے۔ کراچی ملک کا معاشی ہب ہے، کراچی کے اثرات پورے پاکستان پر پڑتے ہیں۔
पाक तुर्क सऊदी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब में तारीखी मक्का मुआहदे पर दस्तखत किए। दिफाई मुआहदे की तारीखी कामयाबी पर इस्लामाबाद में खुसूसी चरागाह, शाहराह दस्तूर समेत इस्लामाबाद की मरकजी शाहराहों पर तीनों मुल्कों के झंडे लहरा रहे हैं। तीनों मुल्कों के लीडर्स के खुसूसी पोर्ट्रेट भी आवेजा किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड पर मुआहदे के अहम निकात भी उजागर। बिलावल भुट्टो ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुल्की तारीख का अहम संग मील करार दे दिया। कहा, मुआहदे से हमारी दिफाई सलाहियतें मजीद मजबूत होंगी। मुआहदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मुस्तहकम और महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। बिलावल भुट्टो ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को मुमकिन बनाने में वजीर आजम और फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। इस्लामी ताउन तंजीम ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, यह मुआहदा खित्ते और इस्लामी दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। इस्लामी मुल्कों का मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। यमन ने दिफाई मुआहदे की हिमायत का ऐलान कर दिया। यमनी वजारत खारजा के मुताबिक बहिरा अहमर, खलीजुद्दन और बाबुल मंदब की सलामती के तनाजुर में ये मुआहदा यमन के लिए भी अहम है। बहरीन की वजारत खारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को इलाकाई दिफाई निजाम में एक अहम इजाफा करार दिया। सोमालिया ने भी मक्का दिफाई मुआहदे को खुशाइंद करार दिया। मक्का दिफाई मुआहदे के बाद भारत पाकिस्तान के मफादात का एतराफ करने पर मजबूर। भारतीय मीडिया ने दिफाई मुआहदे को पाकिस्तान के लिए अहम करार दे दिया। भारतीय मीडिया का कहना है, मुश्तरका फौजी मशक़ें और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका दिफाई पैदावार पाकिस्तान की जंगी तैयारी मजीद मजबूत कर सकती है। पाकिस्तान को तुर्की की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों में आसानी होगी। सऊदी अरब की माली मुआवनत और तुर्की की दिफाई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफाद हैं। ईरान के साथ जंग मजीद बढ़ाने के बजाय कशीदगी कम और जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना चाहिए। अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन का सदर ट्रंप को जंग खत्म करने का मशवरा। अमरीकी नशरियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में बताया, जनरल डैन कैन का ख्याल है मजीद फौजी कार्रवाई के संगीन नताइज हो सकते हैं। उन्होंने अपनी तशवीश से CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, वजीर खारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस को भी आगाह किया। ट्रंप इंतजामिया के आला अहदेदारों को खबरदार किया कि सिर्फ फजाई हमलों से जंग के मतलूबा मकासद हासिल करना मुश्किल है। ईरान और ओमान के दरमियान मुआहदे का मतलब आबना हुर्मुज़ फौरी खोलना नहीं। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, ओमान से आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मुज़ाकरात हतमी मराहिल में हैं। मुसल्लह अफवाज के नक्शे की बुनियाद पर आर्जी बहरी रास्ता तय करने पर काम जारी है। आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने का फैसला दीगर शराइत और अमरीका की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी के अजाले से मशरूत है। ओमान ने मुज़ाकरात को मस्बत करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात में तमाम फरीक़ैन के मुफादात को मद्देनजर रखा जा रहा है। मुज़ाकराती अमल मुतासर करने वाली कार्रवाइयों से गुरेज की अपील कर दी। जंग के बारे में फैसला हुकूमत के इख्तियार में नहीं, अस्करी कमांडर बेहतर जानते हैं कि जंग करनी चाहिए या नहीं। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा, सुप्रीम लीडर जो भी फैसला करें आखिर तक साबित कदम रहेंगे। ईरानी सदर ने मजीद कहा, मुमकिन है कि किसी दिन उन्हें भी शहीद कर दिया जाए। यौम सहाफत पर पैगाम में कहा, ईरान की तारीखी मज़ाहिमत ने अमरीका को मुज़ाकरात पर मजबूर किया। दुश्मन मिसाइलों से ईरान को नहीं झुका सकता। इख्तलाफात पैदा करके मुल्क कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद मुल्क का सबसे कीमती असासा है। यकजहती बरकरार रखने के लिए बाज़ मामलात में समझौता करना होगा। ईरान ने आपने हुर्मुज़ से ज्यादा तेल की तरसील की इजाजत देने का इंदिया दे दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि उम्मीद है खलीज से तेल और गैस की तरसील इसी सतह पर बहाल होगी जो तनाज़ा शुरू होने से पहले थी। जेडी वेंस ने मजीद कहा कि ईरानी निज़ाम में बास हल्कों की जानिब से आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस लेने की बातें सामने आई हैं। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस आयद करने का कोई मंसूबा नहीं। अब देखना होगा कि आपने हुर्मुज़ के मामले पर ईरानी हुकाम
अमली तौर पर क्या इकदाम करते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पीर से मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। वजीर पेट्रोलियम मरीम औरंगजेब और पंजाब के वजीर ट्रांसपोर्ट से इस्तीफे का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां खड़ी करना शुरू कर दी। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन का भी महंगे पेट्रोल और टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ हड़ताल में शामिल होने का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद आवान ने कहा, वफाकी हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। आज मुल्क से आने वाली माल बरदार गाड़ियां सिर्फ कारखानों और बंदरगाहों पर अनलोड करेंगे। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के रहनुमाओं ने बताया, हड़ताल आज से ही शुरू है, मजदा खड़ी कर दी है। जमात इस्लामी ने कल होने वाले धरने मुलतवी कर दिए। एहतजाजी धरने 9 के बजाय 16 अगस्त को होंगे। हाफिज नईम ने कहा, 16 अगस्त को लाहौर में वज़ीर आला हाउस के बाहर लाखों कारकुनान के साथ धरना देंगे। केपी, सिंध और बलूचिस्तान में गवर्नर हाउसेस पर धरने देंगे। पूरा पाकिस्तान पेट्रोलियम लेवी और महंगे पेट्रोल के खिलाफ एक आवाज है। आवाम का मुतालबा है पेट्रोल की कीमत 225 रुपए फी लीटर की जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के खिलाफ हंगू में ऑपरेशन, 7 खवारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन हमजा अकरम ने जामे शहादत नोश किया। IFPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैप्टन हमजा अकरम की शहादत पर इजहार अफसोस। 7 खवारिज को ठिकाने लगाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन पेश किया। बलूचिस्तान के इलाके कम्बीला और आसिमाबाद में फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 4 दहशतगर्द जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल पर इजलास। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा, अहम शाहराहों, फुटपाथों, बरसाती नालों, सरकारी अराजी से तजावुजात खत्म की जाएं। बल्दियाती इदारे तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ने कहा, कोई एक इदारा कराची के मसाइल हल नहीं कर सकता। नई तामीर शुदा सड़कों की बार बार खुदाई रोकने के लिए इदारे मुश्तरका मनसूबा बंदी करें। कराची के सबसे बड़े वाटर प्रोजेक्ट K4 की 172 अरब की नजरसानी शुदा लागत मंजूर। MQM पाकिस्तान का वजीर आजम और वजीर मनसूबा बंदी से इजहार तशक्कुर। कहा, कराची के शहरी तवील अरसे से पानी के शदीद बहरान का सामना कर रहे हैं। बरसों से तातुल का शिकार K4 मंसूबे पर अब तेजी से अमली काम आगे बढ़ सकेगा। उम्मीद है आवाम को टैंकर माफिया से निजात मिलेगी। चित्राल में सैलाब से तबाही, ज़रई अराजी दरियाबुर्द होने लगी। घेरत गोल के मकाम पर आरजी झील बन गई। पानी की सतह बुलंद होने से दरिया किनारे आबाद देहात को खतरात लाहक हो गए। लोअर चित्राल के इलाके से वक्त में मुतादिद घर और ज़रई जमीनें सैलाबी रेले में बह गईं। राब्ता सड़कें और पुल भी तबाह हो गए। चलास में भी सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। ब्यामिन में मुतादिद मकानात, दुकानें, होटल्स और फसलें शदीद मुतासर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत जुर्रत व बहादुरी अवार्ड से मुतालिक खुसूसी कमेटी का इजलास। शहदा और गाजियों को सिविल अवार्ड देने की मंजूरी। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 78 अफराद के लिए एजाजात की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा, वतन अजीज शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों का एहसानमंद है। गैर मामूली शुजात का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई कौमी जिम्मेदारी है। PTI के टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की तहकीकात। लाहौर पुलिस ने मकतूल के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने वाली टिकटॉकर मारिया को सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुलजिमा तक मोबाइल फोन नंबर ट्रेस करके पहुंची। मुलजिमा फैसलाबाद की रिहायशी और वकुआ के बाद से मफरूर थी। लाहौर में 9 तामीर स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स के 3 कोर्ट्स का इफ्तिताह। लेजेंड जहांगीर खान ने रिबन काटकर और शॉट लगाकर ओपनिंग की। कॉम्प्लेक्स के जिम, इंटरनेशनल, नेशनल और प्रैक्टिस कोर्ट्स का दौरा किया। कहा, दुनिया में ऐसे खूबसूरत कोर्ट्स बहुत कम हैं। 3 कोर्ट्स की रुनुमाई करके बहुत खुशी हुई।
स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब ने तीनों कोर्ट पाकिस्तान स्क्वाश एकेडमी के हवाले कर दिए। हमें छोड़कर कैसे जाओगे? मॉस्को में परवाज छूटी तो दो खवातीन ने रनवे पर ही तैयारी का ताकुब शुरू कर दिया। फ्लाइट रोकने की दुहाइयां भी देती रहीं। सिक्योरिटी ने खवातीन को हिरासत में ले लिया। मुल्क भर में जश्न आजादी मनाने की तैयारी, शहर शहर सब झिलाली, परचमों और झंडियों की खरीदारी। हम आजाद जमीन की आजाद फजाओं में पाकिस्तान का परचम फख्र से लहराते हैं। यौम आजादी पर नौजवानों का जज्बात का इजहार। कहाँ हम सलाम पेश करते हैं अपने इस्लाफ को, जिनकी लाजवाल कुर्बानियों ने हमें आजाद और रोशन पाकिस्तान अता किया। और मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? ARY न्यूज की पोलिंग कैंपेन में वोटिंग का सिलसिला जारी। टीवी पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 78% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिए। 22% ने मुखालफत की। फेसबुक पर 98% लोग नए सूबों के हामी, 2% ने मुखालफत की। यूट्यूब पर 78% लोग नए सूबों के हामी, 22% ने इस तजवीज को रद्द कर दिया। व्हाट्सएप पर 72% लोगों ने नए सूबों के कयाम को नागुज़ीर करार दिया। 25% ने मुखालफत की। इंस्टाग्राम पर 85% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 15% ने मुखालफत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 75% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 22% ने नए सूबों की मुखालफत की। पोलिंग का अमल अब भी जारी। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दे सकते हैं।